on the topic From Idea to Impact, motivational session by successful entrepreneur, organized by the Institution Innovation Council (IIC) under Internal Quality Assurance Cell. But before getting on the board with the event, I want to inform you all that we have organized this event under IIC, that is Institutions Innovation Council, which was established on 21st November 2018 at GIMS Vasankuch. Since inception of IICs by the Innovation Cell, MIC, as per the norms and directive of Ministry of Education. It is established to engage large number of faculty, students, and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as hackathons, leadership talks, ideation, workshops, seminars in IPR, entrepreneurship, and other competitive events to enhance the innovation and entrepreneurship ecosystem in the institute. Today we have gathered here to be inspired by the entrepreneurial journey of CA Mayank Vadira. Today's session aims to guide participants on transforming ideas into successful ventures and creating a meaningful impact in the business world. It gives me great honor to welcome and introduce our speaker for the day, CA Mayank Vadira, a multidisciplinary finance professional with prestigious qualifications including chartered accountant, company secretary, lawyer, cost accountant, IBVI registered valuer, and insolvency professional. CA Mayank Vadira, a celebrated first-generation entrepreneur with an impressive 15 plus years of experience, has earned him for business across sectors, helping them navigate results, optimize financial performance, and build campaign structures, all while empowering clients to achieve sustainable growth. His expertise in taxation, valuation, corporate compliance, and business strategy have led impactful projects in taxation, corporate governance, and GST implementation. Mr. Mayank's wonderful initiative for startup and professional community like Legal Suvidha LLP started in 2013. DG Comply Solutions Private Limited in 2016. Corporate Academy Private Limited in 2021. First Unicorn Startup Evolvers Private Limited in 2022. Growbiz Online LLP in 2022 and CA4CPA KPO Solutions Team Private Limited in 2024 have proved to be successful and contributed to the society. We heartily welcome you to our college, sir. Now I request Tabia to kindly present the planter to our esteemed guests as a token of gratitude. Now I would like to finally commence the session by inviting Mr. Mayank to the podium to impact part with Steve knowledge. आपको लग रहा होगा छोटा भाई आ गया। So the topic that has been given to me is that I have to motivate you, but motivation is something which is driven by our self. Okay, so I don't believe in motivating someone. I'm not a motivational speaker. Okay, I believe in results and I believe in doing things on ground with students and with professionals that I've been doing for almost 15 plus years now. And like you must have heard about many ventures that she has just mentioned, starting from Legal Suvidha till CA for CPA. So the journey when it started, it was very small journey. So I am here to share with you not only my journey, but the journey of other people with whom I have worked and the entire startup ecosystem, that how it is evolving in India and how you can be part of this. Okay, so that is the intent of this session, and I'll be sharing practical insights with you, not theoretical gyan, to say. Okay, means what our clients are doing, how they are working, how we are helping them, how we are doing along with our clients. Okay, and this is not a promotion of my services. This is more of what government of India is doing and how you can also take benefit out of the schemes of government of India, right? So this is how it will go. And I just want to know from you, like people sitting out here, like out of all the people sitting out here, how
start your own startup immediately after your college. Okay, so the rest of you, not immediately after college, but after gaining some experience, you want to start your startup. How many of you? Okay, and the rest of you, you don't want to start something of your own. You are here to see कि कितना पानी है इसमें. You're just checking it out, right? Isn't it? मतलब आपको सिर्फ जॉब ही करनी है सारी जिंदगी, जिनका ये इंटेंट है वो ही अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. तो फिर जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया तो वो क्या करना चाहते हैं? फैमिली बिजनेस. Okay. Profession. Any one of you pursuing CA, CPA, ACCA or something? आप में से कर रहा है कोई? कर रहा है? मेरा भाई बंधु है यहाँ पे? अच्छा कोई भी नहीं है. ये पर बता नहीं रहा सर. अच्छा बता नहीं रहा है. चलो कर दो यार. क्या कर रहे हैं आप? CA कर रहा हूँ. CA कर रहे हो actually? मैंने भी actually CA किया. ठीक है. So see, I started my journey back in 2003 when I started helping my father in his business. ठीक है. और मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आती है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ ये. So I started as a cable collection boy. Okay. मतलब जो केबल ऑपरेटर होते हैं ना, केबल लगा होगा आपके घर में, तो पेमेंट कलेक्ट करता था मैं. 8 साल तक मैंने ये काम किया, 2003 से 2011 तक. Till the day I became chartered accountant. ठीक है. 2007 में मैंने CA स्टार्ट किया था और 2011 में आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट इन इन्फोसिस थ्रू ICAI ओनली. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो कोई शर्म नहीं है यार, CA लोगों की बहुत वैल्यू है मार्केट में. ठीक है, आप बहुत अच्छा कोर्स आपने चूज किया है, राइट? इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये. और when I started I had no idea like many of you, आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, राइट? तो अब अगर मैं 2011 की बात करूं, जब मैंने क्वालिफाई किया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी या ग्रेजुएशन मैंने 2010 में लिया था, तो उस 2010-11 की बात करूं एंड इफ आई कंपेयर विद टुडे 2025, तो आपको भी ये दिख रहा होगा लाइक देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैव हैपेंड. लाइक AI आ गया है, जनरेटिव AI है, राइट? अब कोडर नहीं चाहिए आपको, यू कैन यूज Replit, यू कैन बिल्ड योर टूल यूजिंग, राइट? यू कैन बिल्ड योर प्लेटफॉर्म यूजिंग Replit. आपने यूज किए हैं वैसे AI टूल यूज करते हैं आप लोग, रिसर्च वगैरह करते हैं? तो मतलब वैलिडेटेड स्टार्टअप और जॉब कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो हमारे में होनी चाहिए, है ना? मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा और देन आई विल टेक यू टू द जर्नी ऑफ हाउ स्टार्टअप हैपन. बिकॉज स्टार्टअप इज नथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते तो स्टार्टअप कर लेते हैं, वैसा नहीं है ना. इट इज लाइक मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल डिसीजन दैट यू हैव टू टेक. ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सी कि गैप कहां पे है. अगर आप गैप अच्छे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो देन यू आर द राइट पर्सन टू डू अ स्टार्टअप. अब गैप्स किसी भी चीज में हो सकते हैं, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम में भी हो सकते हैं, राइट? सो कॉर्पोरेट एकेडमी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, सो दिस वी स्टार्टेड बैक इन 2022, ऑलमोस्ट 3 ईयर होने वाले हैं अभी मार्च में. तो इसमें हमने जो गैप आइडेंटिफाई किया था वो किया था कि जो इंडस्ट्री है और एकेडमिक नॉलेज है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है. ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोग इसको ये कर रहे हो, कर तो रहे हैं. वैसे आपको पता होगा कि देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु आर ऑलरेडी ब्रिजिंग दिस गैप. बट व्हाट इज आवर डिफरेंशिएटर? Because I had worked in industry, I worked in Infosys and EY for almost 8.5 years, and वहाँ पर जो मैंने gaps देखे, when I left EY, so the major gap was कि मतलब जो expectation हमारी होती थी ना कंपनी में कि हमें ऐसा बंदा चाहिए, versus जो कॉलेज से पढ़ के आता था उसमें बहुत ज़्यादा gaps थे. Gaps क्या थे कि basic email, उनको नहीं पता था email कैसे लिखते हैं, and email और WhatsApp और even a verbal communication जो भी हम बातचीत करते हैं, that is a prerequisite when you are doing a job. चाहे आप जॉब करते हैं, ठीक है, चाहे स्टार्टअप करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, कुछ बेसिक स्किल्स तो आपको चाहिए, राइट? तो स्किल्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्टअप करें, जॉब करें, फैमिली बिजनेस करें, कुछ भी करें, इट डजंट मैटर. ठीक है, अब स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं गैप की बात कर रहा हूँ, तो हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड गैप्स. क्या स्किल जरूरी है उसके लिए? रिसर्च.
रिसर्च। अब रिसर्च को ना सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग, है ना, मतलब वो रिसर्च करते हैं यार ये तो थ्योरेटिकल चीज़ है कुछ, राइट। बट रिसर्च ना आप कभी, आप अगर बाहर ये जो रेडी वाला खड़ा है कॉलेज के जस्ट बाहर, आप वहाँ पर भी चीज़ें ऑब्जर्व करके यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च विद दैट ऑल्सो, है ना। उसका भी कुछ बिजनेस मॉडल होगा इसलिए वहाँ पे खड़ा है वो, राइट। ही इज ऑल्सो अर्निंग समथिंग, करेक्ट। हो सकता है कि जो वो अर्न कर रहा है वर्सेस जो एक शॉप में अर्न कर रहा है, ठीक है, अच्छी शॉप मार्केट में इसलिए रखी है, वो उससे ज़्यादा मार्जिन अर्न कर रहा हो रेडी वाला, ठीक है, क्योंकि उसको रेंट नहीं देना पड़ता है। तो आपको मॉडल्स ढूंढने होते हैं कि कहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है और स्केलेबिलिटी कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है उसकी। अगर आप इस डायरेक्शन में सोच भी सकते हैं ना, तो यू आर अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर एम्प्लॉयर एज वेल एज फॉर योर स्टार्टअप, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर के लिए भी एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं जिसको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर। एंड यू कैन बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर एज वेल, राइट। तो अब जो स्टार्टअप शुरू करना है वो आप में से 5 लोगों ने शायद हाथ खड़ा किया होगा कि मुझे स्टार्टअप करना है, राइट। बाकी सबने मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू योर स्टार्टअप। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर सिटिंग हियर? जस्ट फॉर गेटिंग योर क्रेडिट्स जो आपको मिलते होंगे सेशन अटेंड करने पे, करेक्ट? यही है ना उसका रीजन? हाँ बिल्कुल यार, ऐसा ही है ना। बट मैं इसको इतना बोरिंग नहीं बनाऊंगा कि ये क्रेडिट के लिए सेशन हो, आई विल ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू। तो थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि आप सब अपना एक स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट 30, 35, 40 मिनट जो भी हम इंटरेक्ट करेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे कि आप अपने जो थॉट्स है ना, जो आपने अंदर दबा रखे हैं, आप उनको शेयर करेंगे, ठीक है। आई वांट इट टू बी पार्टिसिपेटिव, ये वन वे फ्लो नहीं रहना चाहिए। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये कैसे आगे होगा। PDF है, ये ऐसे हो जाएगा See, in India, every month 15,000 companies are getting incorporated. कितनी हो रही है incorporate? 15,000. Yearly कितनी हो गई? कितनी हो गई yearly? Approximately 1,80,000. अभी यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा 159,244. ये नंबर दिख रहा है? These are recognized as startups. Recognized as startup मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप अंडर DPIIT स्कीम, ठीक है। तो ये 1,60,000 इज अ काउंट ऑफ दो स्टार्टअप्स दैट आर रजिस्टर्ड अंडर DPIIT। अब यहाँ पे रजिस्टर करने के फायदे हैं, बहुत क्रेडिट्स भी मिलते हैं, बहुत सारा बेनिफिट होता है। बट कहने का जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, अगर 1,80,000 पर ईयर बन रहे हैं नए कंपनीज और LLPs, सो 1,80,000 उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट 10 साल में कितनी कंपनीज बनी होंगी? ऑलमोस्ट 18 लाख बनी होंगी, राइट। उन 18 लाख में से द डेटा दैट आई हैव 80% लोगों ने अपनी फाइलिंग ही नहीं की। 18 लाख में से 80%, हाउ मच इज 80%? इट्स ऑलमोस्ट 14,40,000, राइट। एंड 3,60,000 people are only actively filing their forms, who are actively doing their compliance. And out of those 3,60,000, only 36,000 are revenue making startups. Okay, 90% of them are not making any revenue, बस कंपनी बोल रही है फाइलिंग करना है, नई फाइलिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टअप करें तो कभी भी इस जल्दबाजी में मत पड़े कि मुझे कंपनी बनानी है, मुझे स्टार्टअप करना है, तो मेरे को इनकॉर्पोरेशन करना है, क्योंकि ये जो डेटा है ये बताता है या तो आप फाइलिंग नहीं करोगे या जीरो फाइलिंग करते रहोगे, अननेसेसरी कंप्लायंस के बर्डन में पड़ जाओगे, राइट। तो स्टार्टअप शुरू करना है अगर, तो यू कैन स्टार्ट इवन एज अ प्रोप्राइटर। आप आज की डेट में एज अ स्टूडेंट भी आप शुरू कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, है ना। और स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता कि जो फंडिंग जिसको मिलती है उसको स्टार्टअप बोलते हैं। यू कैन स्टार्ट इट एज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप बोलते हैं। कैसे कर सकते हो? क्या होता है बूटस्ट्रैप? ओके, और क्या हो सकता है? राइट, आप अपने कस्टमर के रेवेन्यू, जो आप कस्टमर से रेवेन्यू अर्न करते हैं उसको दोबारा से आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं,
वो भी बूटस्ट्रैप हो सकता है स्टार्टअप आपका, राइट? तो क्या होता है कि हम बिलीव करते हैं, मैं बिलीव करता हूँ इस पे, मैंने इस पे एक बुक भी लिखी है कि मिनिमम वायबल अप्रोच ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। व्हाट इज मिनिमम वायबल अप्रोच? क्या होती है एमवीपी? क्या होता है? व्हाट इज एमवीपी? अच्छा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पता है आपको? किसी को पता है जिसने स्टार्टअप शुरू करना? हाँ यस यस। व्हाट इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट? मतलब आपका कुछ आइडिया है, ठीक है, आप उसको प्रूव करोगे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ बना के करोगे। जैसे मान लो मुझे, सपोज मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, हर बंदे को जानना है कि मेरे आइडिया की वैल्यू क्या है, जो मैं सोच रहा हूँ ना, इसकी क्या वैल्यू है, पोटेंशियल क्या है, टैम क्या है, सैम क्या है, सॉम क्या है, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, सर्विसेबल मार्केट क्या है उसमें, ठीक है, और मैं उसमें से कितना एक्वायर कर सकता हूँ कस्टमर। अब ये टैम सैम सॉम जो है ना, आप चैट जीपीटी में जाके भी निकाल सकते हो, आप क्लाउड पे भी जाके निकाल सकते हो, एंथ्रोपिक पे, राइट, जेमिनी से भी निकाल सकते हैं, राइट। बट क्या होगा वहाँ पर ना, आपको रिफाइंड और कन्फाइंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे एक एलएलएम बिल्ड कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं। एलएलएम समझते हो? LLM is like a large language model। मतलब जैसे आप लोग हैं, आप जैसे who are the rankers, मतलब कौन लोग हैं जो टॉप 3 में आते हैं क्लास में, जो सबसे पीछे बैठे हैं? नहीं, पिछले रिजल्ट में कौन थे टॉप 3 में? 12th तक हो गया आपने? 12th में तो होंगे कोई टॉप 3 में अपनी क्लास में आपके, ठीक है। जैसे अब ये दो बंदे हैं, ठीक है, इनका जो पूरा मान लो कि ब्रेन है, ठीक है, उसमें इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन आज तक नॉलेज इन्होंने स्टोर की है या इंफॉर्मेशन इनके पास है और कैसे ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर मैं उसको एक एआई में डाल दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बना दूं, ठीक है, और ऐसे लाखों बच्चों का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बना दूं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से जब हम रिस्पॉन्स लें, ठीक है, तो क्या बेटर आएगा वर्सेस जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसका रिस्पॉन्स आएगा वो बेटर होगा। दोनों में क्या बेटर होगा? बस बनना। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर लाइक दिस ओनली, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो भी रिफाइंड, कन्फाइंड और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिस भी पर्टिकुलर डोमेन की, वो टेक बेस्ड नॉलेज हो सकती है, वो कॉमर्स की नॉलेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ पे एक एआई को ट्रेन करना, उसको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना और उससे कन्फाइंड वे में वो इंफॉर्मेशन लेना एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। मतलब आप अगर एआई को यूज़ करते हो तो आप एक्सप्लेनेटरी रिस्पॉन्स ले सकते हो, आप समराइज रिस्पॉन्स ले सकते हो, आप पॉइंटर्स भी ले सकते हो। वो है कि इंफॉर्मेशन आप कैसे ले रहे हो, राइट। अब मैं जो आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली इससे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको एक स्टार्टअप आइडिया बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई किया कि ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना अपने बिजनेस की आइडिया की ना वैल्यूएशन कराना चाहते हैं इन्वेस्टर के पास जाने के लिए, और ऐसा है भी क्योंकि मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ तो हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट्स। अब उसमें क्या होता है कि ना वो एक लेंथी प्रोसेस होता है 15 से 20 दिन का। कितने दिन का होता है? 15-20 डेज, ठीक है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, आप वैल्यूएशन समझते हैं ना क्या होती है, उसको आप हो गया सीधा काट आप वैल्यूएशन समझते हैं ना, मतलब सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे को ना अपने आइडिया की वैल्यू जाननी है। मैं वैल्यूअर के पास जाता है, वैल्यूअर की फीस होती है 50,000 से स्टार्ट होती है, 3 लाख रुपीस तक होती है। अब 50,000 में तो कोई ऐसे देगा नहीं ना, वो तो कहेगा इतने में मैं बिजनेस शुरू कर लूँगा 50,000 लगा के, राइट। सो ऐसा कोई मार्केट में ना टूल नहीं है जहाँ पर आप अपने आइडिया के हिसाब से जो आपकी इनपुट्स है वो कैप्चर करता हूँ और इंस्टेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट करके देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जिस पर मैं काम खुद कर रहा हूँ कुछ दिनों से, ठीक है, लास्ट 20 डेज से, फर्स्ट सेकेंड जनवरी से मैं स्टार्ट किया। तो अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे देख लिया, मिनिमम 75,000 रुपीज़ से उनकी फीस स्टार्ट होती है इस चीज़ की, आइडिया को जो मतलब स्टार्टअप के आइडिया। अब वो चीज़ अगर सपोज इफ आई एम एबल टू डू इट बेटर देन देम, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी करूँ और इंस्टेंटली भी दूँ, मतलब अभी 15 दिन लगते हैं, अभी 75,000 लगते हैं, ठीक है, और अभी वैल्यूअर एक ही होता है, ठीक है। मैं अपने एआई मॉडल को ऐसे ट्रेन कर दूँ जो टॉप के जो वैल्यूअर्स हैं, अश्वथ दामोदरन है, आप लिख सकते हैं उनका नाम, अश्वथ दामोदरन इज द टॉप वैल्यूएशन एक्सपर्ट अक्रॉस द ग्लोब।
अगर आप फाइनेंस को फॉलो करते हैं तो आपको उनका नाम पता होगा, वरना यू कैन चेक इट आउट, आई थिंक ही नोज, है ना। तो अगर अश्वत्थ दामोदरन जैसे वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस हिसाब से सोच के आपको वो रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी तो फिर प्रीमियम कॉस्ट 15 लाख 20 लाख से शुरू होती है। तो अगर मैं ऐसे 15-20 लाख रुपए की रिपोर्ट, उस लेवल की रिपोर्ट आपको $50 में देता हूँ, $50 कितना होता है, 4000 समथिंग होता है, मतलब 4-5 लाख में मैं इंस्टेंट रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ, डिटेल रिपोर्ट दे रहा हूँ विद ग्राफिक्स, बेटर देन व्हाट वैल्यूअर इज डूइंग। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, क्या क्या चीजें करी मैंने, सस्ते में दे रहा हूँ, फास्ट वे में दे रहा हूँ, बेटर रिपोर्ट दे रहा हूँ, करेक्ट है ना। तो ये 3 चीज करी मैंने, तो यही स्टार्टअप हो गया ना, ये आइडिया हो गया ना स्टार्टअप आइडिया। अगर ये मैं इन्वेस्टर्स को पिच करता हूँ, जो VCs हैं, VC और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका तो रोज का ही काम है, तो रोज स्टार्टअप की वैल्यूएशन करते हैं। अगर वो मेरे टूल को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे तो आई कैन चार्ज देम प्रीमियम ऑल्सो, मैं मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज कर सकता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये मॉडल हो गया, क्या हो गया, मॉडल, ठीक है। अब एक मॉडल ये भी है कि B2C, जैसे आपको अपने आइडिया की वैल्यूएशन देंगे तो आप मेरे पोर्टल पे आओगे, आप चेक करके चले जाओगे, वन टाइम आप मेरे वन टाइम कस्टमर हो गए, ठीक है। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी मेरे पोर्टल पे आके देख सकता है, वैलिडेट कर सकता है कि वो कैसे वैल्यू निकाल रहा है वर्सेस अश्वत्थ दामोदरन जी कैसे निकाल रहे हैं, कंपेयर कर सकता है। एक इन्वेस्टर मेरा क्लाइंट हो सकता है, तो क्या हुआ कि मेरे ये स्टेक होल्डर्स हो गए डिफरेंट दैट कैन बी माय क्लाइंट, राइट। अब मैंने आपको ना जो ये छोटा सा एग्जांपल दिया, दिस इज ऑन व्हाट फ्रंट, क्या चीज है ये जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्या है, दीज आर मॉडल्स, रिवेन्यू मॉडल है मेरे अलग अलग, मतलब वन टाइम मॉडल हो गया रिवेन्यू का, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया, ठीक है। तो मेरे को गर्मी लगती है यार, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, वो उसको ना दिक्कत हो जाए कुछ, बंद कर दो, बंद कर दो, बीमार ना कर देना। हाँ, सो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो इसमें क्या है, पहले तो गैप आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके लिए सॉल्यूशन एक MVP बिल्ड करा, उसको लॉन्च करा, उसके लिए राइट कस्टमर ढूंढे, राइट, उनका फीडबैक भी मिलेगा, उसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो MVP अप्रोच इज नथिंग दिस, ये जो मैं बता रहा हूँ MVP यही होता है कि मैंने अपना POC लॉन्च करके उसको मार्केट से वैलिडेट किया, कंटिन्यूअस फीडबैक लेके इम्प्रोवाइज किया और उसको फिर स्केल किया, ठीक है। इट कैन बी लाइक इसकी वैल्यूएशन 200 मिलियन की हो सकती है, मान लो US में सिलिकॉन वैली में मैंने इसको पिच किया, ठीक है। आज की डेट में किसी के पास ये सॉल्यूशन नहीं है, ट्राई किया था लोगों ने, लेकिन वो बहुत पहले किया था, अर्ली कर लिया उन्होंने ट्राई। अब जो मॉडल अवेलेबल है वो सस्ते में और ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आज की डेट में जो अवेलेबल है, ठीक है। तो आज की डेट में इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े बेटर हैं, चल भी सकता नहीं भी चल सकता, बट स्केलेबल है। आपको क्या लगता है, स्केलेबल है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग है, ठीक है, और कम कॉस्ट में डेवलप किया है मैंने। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो अभी मेरी कॉस्ट इसमें 18,000 रुपये लेनी है टोटल, और ऑलमोस्ट रेडी है टूल मेरा आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टार्टअप जो बिल्ड होता है ना, वो ऐसे ही होता है, शुरुआत छोटे से होती है। अगर मैं लीगल सुविधा जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी बात करूँ, आप legalsuvidha.com पे जाएंगे, बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, कुछ उसमें हमने बहुत खास अपग्रेडेशन नहीं कर रखे, कुछ टूल्स इंप्लीमेंट नहीं कर रखे, उससे हमारा 1 CR का रेवेन्यू जनरेट होता है क्लियरली, प्लेटफॉर्म से नहीं होता, वहाँ से जो लीड जनरेट होते हैं, फिर वो हमारे कस्टमर बनते हैं, ठीक है, वो एक जर्नी होती है। तो एज अ फाउंडर आपको वो जर्नी भी सीखनी जरूरी है, सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे नहीं, मींस देयर आर 7 स्पोक्स ऑफ बिजनेस। कितने स्पोक्स समझते हो क्या होता है, व्हाट आर स्पोक्स, भैया होता है व्हील में तार होती है, उसको स्पोक बोलते हैं। 7 स्पोक्स होते हैं, ये कौन से होते हैं 7 स्पोक्स, एनी वन ऑफ यू? जैसे मैं इसी की बात करूँ अपने आइडिया की, प्रोडक्ट तो मैंने बना लिया, बट इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा ना। तो पहला दो को बिजनेस होता है मार्केटिंग, क्या होता है मार्केटिंग। सेकंड इज सेल्स, मतलब मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग करके क्या होगा, मैं इंटरेस्ट जनरेट करूंगा, आई विल बी जनरेटिंग इंटरेस्ट, आई विल बी जनरेटिंग लीड्स, ठीक है, उनको फिर मैं पिच करूंगा, देन आई विल गेट कस्टमर, कैसे, सेल करके। तो दूसरा स्कोप क्या होगा, पहला क्या था मार्केटिंग, दूसरा तीसरा फाइनेंसिंग, ऑपरेशन मतलब ये जो टूल चलेगा, क्या ये अपने आप चल जाएगा सब कुछ,
को पीछे वैलिडेट करने के लिए कोई यूजर होने चाहिए ना, मेरी साइड पे भी होने चाहिए, बैकएंड टीम होनी चाहिए ना, जो मैं मॉनिटर करते रहे कि आउटपुट ठीक से दे रहा है नहीं दे रहा है, आउटकम्स आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, आप क्लियर हो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आपने अगर रिपोर्ट दे दी, ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट जनरेट भी हो गई। ठीक है, अब उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है, कोई एक्यूरेसी भी तो चेक करेगा ना उसकी। ऑपरेशन टीम इज रिक्वायर्ड। तो कितने स्कोप हो गए? 3 हो गए। 4 स्कोप क्या होगा? फीडबैक। बिलिंग भी तो करूंगा, बिलिंग ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, भली मैं गेटवे लगाऊं स्ट्राइप का या कोई भी गेटवे, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, राइट? तो क्या होगी? अकाउंटिंग फाइनेंस हो गया। ठीक है, जो जीएसटी चार्ज होगा, जो फाइलिंग होगी, कंप्लायंस भी होगी। ठीक है, 5th स्कोप हो गया क्या? कंप्लायंस हो गया। देन एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था स्टार्टिंग में कि जब कोई आइडिया हो, आइडिया कैसे आता है, गैप्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? रिसर्च R&D की रीजन भी होनी चाहिए मेरी। 6th स्कोप हो गया, करेक्ट? ठीक है, HR ह्यूमन रिसोर्स, मेरे पास एम्प्लॉइज होने चाहिए, एक फनल होना चाहिए, एम्प्लॉइज आने का, एग्जिट का, उनकी सैलरी पेमेंट का, हर चीज का पेमेंट मैनेजमेंट का, राइट? तो अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो you need to learn all these things in a structured and refined way. ठीक है, जबकि आप जॉब में जाएंगे ना तो आप किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन में काम करेंगे। तो स्टार्टअप करने में और जॉब करने में ये डिफरेंस है कि स्टार्टअप में यू हैव टू ओन एवरीथिंग, एंटायर प्रोसेस, राइट फ्रॉम योर मार्केटिंग, ठीक है, टिल यू एक्वायर योर कस्टमर, यू डिलीवर टू देम, ठीक है, यू डू योर कंप्लायंस, राइट, यू डू योर कस्टमर बिलिंग, अपनी टीम को मैनेज करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स को मैनेज करते हो, आप स्वॉट एनालिसिस करते हो कंटिन्यूअसली मार्केट में, क्योंकि आप ही प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या ये कॉपी नहीं हो सकता? तो आप अगर कोई कॉपी करता भी है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट को इतना इवॉल्व करना है कि वो उस लेवल तक पहुंच ही ना पाए। तो कंटिन्यूअस एवोल्यूशन करने के लिए R&D स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो हर फंक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा फंक्शन नहीं होगा और एम्प्लॉइज आपके आप हायर ही नहीं कर पा रहे हो, टीम कैसे इंक्रीज करोगे? नहीं कर पाओगे ना, जितनी भी फंडिंग हो किसी स्टार्टअप के पास, ऐसा फंक्शन नहीं होगा तो वेदर दे विल बी एबल टू थ्राइव, राइट? ऑल फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट ना, तो इसलिए इनको ना फोक बोलते हैं। अगर पहियों में से एक भी कार्ड टूट जाएगा तो पहिया उठ जाएगा, ठीक है, इसलिए फोक बोलते हैं। ठीक है, अब मेरा जो सेशन है ना बेटा, ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, नॉलेज से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको राइट नॉलेज हो, आपके पास एटलीस्ट एक डायरेक्शन होगी कि आपको किस चीज़ पे काम करना है ना। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मार्केटिंग के एक्सपर्ट बने, कुछ लोग हो सकता है सेल्स के एक्सपर्ट बने, है ना, कुछ HR के एक्सपर्ट बने, राइट, और कुछ हो सकता है खुद का स्टार्टअप करें एंड दे लर्न ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, अब जैसे ये 5-6 वेंचर्स के नाम इन्होंने लिए इंट्रोडक्शन जब किया, तो क्या ये 6 कंपनी मैं ही चलाता हूँ अकेला? पार्टनर। कल को जब आप तो कल को जब आप एक बिजनेस को स्केल करते हैं, once you give your operations, your marketing, all these functions, आप ये डेलीगेट कर पाते हैं अगर, तो फिर आप दूसरे में यूज कर सकते हैं। जब आप दूसरे में ये किसी को डेलीगेट कर सकते हैं या राइट पार्टनर ढूंढ सकते हैं, तो फिर तीसरे में भी कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट मल्टीपल वेंचर्स दिस वे। ये नहीं कि सब जगह आपने जो है हाथ पैर चला दिए और रेवेन्यू कहीं भी नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रेवेन्यू मेकिंग होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, और ऐसा मॉडल बन जाना चाहिए वेयर यू कैन डेलीगेट द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। ठीक है, तो बिल्ड हमेशा ऐसा करो कि एग्जिट अच्छा हो। अगर सिर्फ आपकी डिपेंडेंसी है, फाउंडर एक फाउंडर की सारी डिपेंडेंसी है, तो फिर वो स्टार्टअप नहीं है, वो फिर फ्रीलांसिंग है। क्या समझे? क्या है फ्रीलांसिंग? कल को मान लो मुझे कोई बोलता है कि तुझे 50 करोड़ देता हूँ, तू एग्जिट कर दे, छोड़ दे, तो एक बार मैं सोचूंगा ना यार 50 करोड़ आ रहा है, ठीक है, एग्जिट इसलिए करना होता है कि आपने कुछ बिल्ड कर दिया, आपको एक अच्छा रकम मिल गया। 50 करोड़ में बहुत कम बोले, 500 करोड़ 1000 करोड़ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, राइट? तो आपको अच्छा अमाउंट जब मिल रहा होगा तो एक बार में तो आप ही तो सोचेंगे कि ठीक है यार अभी बहुत हो गया, ठीक है ना? लाइफ भी तो है ना, लाइफ तो जीनी है ना, या बस स्टार्टअप करते रहोगे, काम ही करते रहोगे। एग्जिट इसलिए लेना जरूरी होता है कि आप
दूसरी वेंचर में आप दूसरी वेंचर में भी जा सकते हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आपका पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक है। बट अगर एग्जिटेबल बिजनेस नहीं है, आप पे डिपेंडेंट है, तो फिर उसकी कोई वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती। इमोशनल कनेक्ट से क्या करोगे? पैसे मैनेजमेंट इमोशनल कनेक्ट से फायदा नहीं। बिजनेस देखो, पर्सनल चीजें अलग हैं, बिजनेस अगर आप बिजनेस से इमोशनली कनेक्ट हो गए तो फिर वो बिजनेस नहीं है। What do you इमोशन ना एक लेवल तक तो ठीक है, पैशन इमोशन ना आप पैशन में कुछ बना रहे हो, आपने वो बना दिया, बिल्ड हो गया, बड़ा हो गया, बहुत ठीक है। नाउ इफ समवन इज टेलिंग यू कि मैं $100 देता हूँ इसको और मैं तेरा 90 में रिजल्ट दूंगा, तो अब दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, इसमें दो लोग लेके क्योंकि क्या है कि अगर आप एक ही चीज़ से खुश रहोगे, ठीक है, इमोशनली नहीं है, यू हैव टू इवॉल्व आपको लगता है कोई नया वेंचर या नई चीज़ें करना चाहें, या हमारे हो सकता है आप विदेश जाना चाहें, बाहर जाके कुछ चीज़ें करना चाहें, तो भी होती है, राइट। बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, आप लाइफ टाइम में कर सकते हो एनी टाइम, दैट इज टोटली योर पर्सनल डिसीजन। मतलब आप जो ये काम करेंगे, जो भी आप स्टार्टअप करेंगे, इससे क्या होगा, मतलब एक स्टार्टअप अगर एक स्टार्टअप है इंडिया में, जो स्टार्टअप इंडिया में कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कितने बताए थे, मैंने आपको 3,60,000 बताए थे, उसमें से 36,000 ही होंगे जो रिवेन्यू मेकिंग है। तो एक स्टार्टअप ऐसा बोला जाता है कि एक स्टार्टअप ना मिनिमम एवरेज 4 बंदों को एम्प्लॉय करता है, 4 एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर हर साल 1 लाख स्टार्टअप शुरू होते हैं, ठीक है, तो 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब वो 4 लाख लोगों में एवरेज 3-4 बंदे तो होते हैं उसकी फैमिली में, तो 4 into 4 कितना हुआ, आप 1 लाख स्टार्टअप शुरू करते हो तो 16 लाख फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, फैमिली, ठीक है। और अगर आप इस तरह से भी सोचो, मतलब आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट, जीडीपी ऑफ इंडिया, राइट। तो वो भी एक जो है प्राइड की बात होती है, ठीक है। अभी जैसे ना एक इवेंट होगा अप्रैल में, अगर आपके पास समय हो तो स्टार्टअप महाकुंभ करके एक इवेंट है, जो आईटीओ बोलते थे उसको, भारत मंडपम है ना, आईटीओ वही है ना, तो आप वहाँ पर जाओ, एक दिन जरूर जाओ आप देखो, आप जितने बच्चे वो सारे आपकी सेम एज ग्रुप के बच्चे वहाँ पर काउंटर्स लगाकर बैठे होंगे, जो इंक्यूबेटेड होंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं कॉलेजेस के, वो बच्चे इंक्यूबेटेड होंगे और उनके ना आइडियाज देखना, यू विल गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कोई मतलब वो ना अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक मैं देख के आया था, एक बच्चे ने बनाया था ना, जैसे उन्होंने कैमरा जो होता है ना, जैसे आप पहले कैमरा लगाओ, तो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो कैमरे से ना इंटीग्रेट हो जाता है और वो मूवमेंट्स को मॉनिटर करता है, आपका फेस डिटेक्ट करता है। जैसे कि एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो एम्प्लॉय कौन सा ऐसा है जो काम कर रहा है बैठ के, ठीक है, और कौन सा ऐसा है जो काम नहीं कर रहा, मतलब वो मोशन डिटेक्टर ये आइडेंटिफाई करता है, आपकी अटेंडेंस भी, आप कैसे काम कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो वो भी। अभी किसने बताया, ये बच्चों ने बताया जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, ठीक है, मतलब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे थे आप जैसे। तो स्टार्टअप महाकुंभ आप नोट कर लो, आप जरूर जाना, एक दिन 4, 5, 6 3 दिन का इवेंट है, 5 तारीख को आना, 5 को जाने का ज्यादा बेनिफिट है, अगर एक दिन जा सकते हो तो यू विल गेट टू नो कि हाउ स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट 3,000 प्लस स्टार्टअप्स होंगे, जिसमें से 300 स्टार्टअप बच्चों के होंगे जो कॉलेजेस में है, आप जैसे बच्चे होंगे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आए होंगे। मोटिवेशन वहाँ से मिलेगी, मोटिवेशन यहाँ से नहीं मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, जैसे मैं आपको एक कॉलेज वाले बच्चों को बता रहा हूँ, तो देयर आर 200 प्लस इंक्यूबेशन सेंटर्स which have been they have set up in last 3 years, 2021 end में, मतलब लास्ट 3 साढ़े 3 साल में 200 उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, और उसमें दे इंक्लूड अराउंड I think 1,000 crore of rupees every year, 1,000 crore of rupees they give fund, government fund देती है इंक्यूबेशन सेंटर को, वो इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को फंडिंग देता है, ठीक है। विल स्टार्ट विद 20 lakh grant to 50
भोली शक्ल देख के वो कहें यार ये तो सीरियस नहीं लग रहा है राइट। बट क्या है ये सोच के आप अगर जिसने करना होगा वो तो करेगा ना, ठीक है। मतलब मैं ना आपसे ही नहीं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। अगर 3 साल पहले की बात करूँ तो शायद 5% बच्चों का इंटरेस्ट होता था कुछ स्टार्टअप में बनने में। आज वो नंबर ना काफी बढ़ गया है, ठीक है। एक कॉलेज है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, सुना आपने? गुड़गांव में। तो नॉर्थ कैप में भी मेरे सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कैप में बेसिकली आप समझो वहाँ पे मैं खाता हूँ around 100 of students have participated, 100 plus लोगों ने। उनकी टीम थी 15-20 टीम थी उनकी। तो आप ये समझो कि फ्रैक्शन रिलेटेड बिट हो रही है, ठीक है। बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका जो एडवांटेज है वो ये है कि यू डोंट कैरी एनी बैगेज, ठीक है। ये बैग लेके जाने में ठीक है। बैगेज नहीं होती ना आप लोगों की, बैगेज समझते हो ना, मतलब अपने एक्सपीरियंस कैरी ऑन नहीं करते, यू हैव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव अबाउट इट। तो आप जैसे चीजें सॉल्व कर सकते हो। मे बी जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, जैसे आप में से कुछ लोग थे जो कह रहे थे कुछ एक्सपीरियंस गेन करके फिर स्टार्टअप करेंगे। तो जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो ना, तो आपने बैटमैन की एक मूवी देखी होगी, वो रस्सी बांध के जितनी बार भी चढ़ता है ना ऊपर वो गिरता है, जिस बार वो रस्सी बांध के नहीं चढ़ता वो ऊपर चला जाता है। आप तो बैटमैन की ये वाली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली जब आपके पास बैकअप प्लान होता है ना तो शायद आप उतना अच्छा नहीं कर सकते। जब बैकअप प्लान नहीं होता ना तो आप बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बैकअप प्लान होता है तो डर होता है प्लान भी हो, आप लोग प्लान नहीं करेगा तो बिल्कुल चल जाएगा, राइट। अब ये मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसा मत करना कि सब छोड़ के तुम स्टार्टअप के पीछे लगे, ठीक है। बैलेंस करके चलना, चीजें होती हैं, बैलेंस करके भी चीजें होती हैं। यू हैव टू फाइंड गुड मेंटोर, यू हैव टू फाइंड गुड को-फाउंडर, आप कर सकते हैं। तो 5 बंदों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उसमें से कोई भी एक मुझे बताएगा कि आप क्या शुरू करना चाहते हैं। एनीवन ऑफ यू। ई-कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में क्या करना चाहते हो? ठीक है। प्लस क्या हो गया आपके? ब्यूटी प्रोडक्ट, गुड। मतलब दूसरों की या खुद की मैन्युफैक्चरिंग? मतलब आपने अभी उतना नहीं सोचा है, बट आप कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है। और ई-कॉमर्स तो बूम कर रहा है वैसे ही, अब ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सकते हो आप, ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो, इनऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। और किसी का? सर लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने बताया था। अच्छा लास्ट ईयर वाला, हाँ ये तो मेरे को बताइए, मैं लिंक्डइन पे भी कनेक्टेड है ना। सर एक्चुअली मैंने मैसेज किया था आपको, आपने कहा था कि अभी आप बिजी हो तो फिर बाद में कनेक्ट होंगे। अच्छा तो आप वर्किंग में कैसे हो? आई एम सेकंड ईयर राइट नाउ। अच्छा ठीक है ठीक है। आईआईसी ये मैनेज करिए तो दैट्स फाइन। ओके ठीक है। तो आपका क्या आइडिया था वैसे? सर बेसिकली मेरा क्रॉप सप्लाई चेन पे था। अभी हो गया स्टार्टअप? नहीं सर अभी कहाँ हुआ है। नहीं हुआ। आई मीन तो आज इट्स ऑन राइट नाउ, इट्स ऑन आइडिएशन स्टेज पे है एंड लाइक मैं आपने अपनी तरफ से कुछ ट्राई नहीं किया अभी? सर कुछ कॉलेजेस एंड ऑल में पार्टिसिपेट एंड ऑल किए थे, वहाँ पे मिली थी आई मीन की अच्छी सजेशन। अच्छा क्रॉप में ना एक गुड़गांव में स्टार्टअप है, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, आप मेरे से पहले वो कनेक्टेड। यस सर। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कुछ सिस्टम था, उसको इंटीग्रेट करा अपनी ऐप में। और वो वेदर के हिसाब से ना, मतलब कौन सी वेदर और लैंड के हिसाब से कौन सी लोकेशन पे क्या आपको ग्रो करना चाहिए, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाया उन्होंने। बिहार एआई स्टार्टअप कह सकते हैं आप। आई थिंक देहात ने अभी कोई एक नहीं, स्टार्टअप नहीं है। एक्वायर करा, नहीं देहात ने अभी एक कोई स्टार्टअप एक्वायर करा हुआ है एंड वो भी ऐसे ही कुछ कर रही है कि वेदर एंड ऑल पे। बट आपसे मैं ऐड कर देता हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसमें करना चाहते हो, सप्लाई चेन में? मेरा पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे अभी स्टार्टिंग इनिशियल पे मेरा यही रहेगा। अब बाद में फिर एक्सपैंड करने के लिए और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं तो उसमें इंक्लूड करूँ। कोई बात नहीं, अगर आपके पास समय हो आज सेशन के बाद यस सर। तो हाफ एन आवर विल सेट। ओके सर। ठीक है Thank you, sir. ठीक है। और कोई?
और किसी का कुछ अभी आइडिया? बस एक आइडिया है कुछ हाँ, इम्प्लीमेंट, you can share. मतलब ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में लाइक क्रिएट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और फिर उसको ऑनलाइन ई कॉमर्स पे सेल। Kids lifestyle या lifestyle? लाइफस्टाइल जैसे मतलब जैसे वॉलेट पर्स होते हैं, इट्स लाइक एसेंशियल, उस पे था लाइक कुछ जैसे या तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे कि आपको साइड में रोड्स पे मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो कि इजी अवेलेबल हो ऑन ई कॉमर्स मतलब। अच्छा, मतलब आप प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो एट अफोर्डेबल कॉस्ट, हाँ ऐसा? समथिंग बट आप लाइफस्टाइल में करना चाहते हो। दैट अभी तो बस मैन्युफैक्चरिंग एक नीश है, बाकी क्या प्रोडक्ट्स है उसमें भी थोड़ा। ठीक है, तो जैसे आपको ना आइडिया है, ठीक है? अभी इनका आइडिया ले लेते हैं, जो भी आइडिया वाला काम है, उनका भी एक ई कॉमर्स वाला आइडिया था, दोनों को मर्ज कर देता हूँ मैं। अभी जैसे इनको मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या इनको A1 में मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा है। करेक्ट, ठीक है। जैसे इन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, ये बोल रहे हैं कि रोड साइड पे भी मिलता है, और दूसरा भी इन्होंने कुछ बताया, क्या मिलता है? या तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। तो आपको प्राइस रेंज का आइडिया है? सर अभी मुझे कुछ इतना कोई बात नहीं, तो आपको जैसे पहले तो आपको ना ये देखना पड़ेगा, सीधा ना कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। पहले आप क्या करो, आप रिटेल में जो सेल हो रहा है ना, आप उसकी प्राइसिंग चेक करो, क्वालिटी चेक करो, उसके सारे प्लस माइनस देखो, प्रीमियम प्रोडक्ट के भी और जो रोड साइड सेल हो रहा है उसके भी, ठीक है। उसके बेस पे ना आप अपना एक प्रोडक्ट का रेडी करो रोड मैप कि मेरे प्रोडक्ट में ना ये चीज़ अच्छी होगी जो प्रीमियम वाले में नहीं है। जो प्रीमियम में है, जो क्या होगा कि प्रीमियम वो बेच रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ उसकी कॉस्ट भी किसी चीज़ की ज़्यादा हो, ठीक है। और ब्रांडिंग की तो होती है प्रीमियम प्रोडक्ट में, ब्रांडिंग में पैसा होता है सारा प्रीमियम प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप क्या करो कि अपने प्रोडक्ट का रोड मैप जब बनाओ तो पहले मार्केट की रिसर्च करके एक आइडियल प्रोडक्ट आपने बना दिया, उस आइडियल प्रोडक्ट को ना आप थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराओ, खुद मैन्युफैक्चरिंग मत करो, ठीक है। आप उसके 50 पीस बनवाओ पहले, राइट। उन 50 पीसेस को आप ट्रायल बेसिस पे आप शॉपिफाई से भी सेल कर सकते हो, बट आप मतलब सोशल सेलिंग करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चला के वहाँ से सेल करो, आप प्लेटफॉर्म पे जाओ ही मत, ठीक है। कोई कॉस्ट भी नहीं आएगा, आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम में लोग बेच रहे हैं, आपको पता है, राइट। आप उसको यूज करके आप अपनी MVP टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब राइट वे ऑफ लॉन्चिंग अ स्टार्टअप ये है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही राइट वे है, बट ये एक सेफ, सिक्योर और सिस्टमेटिक वे है, राइट। इसमें इनिशियल कैपिटल भी बहुत ज़्यादा तो लगेंगे, ठीक है। आप 20 पीसेस से भी शुरू कर सकते हो, ऑर्डर है, रिपीट ऑर्डर है तो आप और थर्ड पार्टी में बना सकते हो, राइट। तो ऐसे आप स्टार्टअप आइडिया को लॉन्च करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, जब इसको स्केल करना हो, बढ़ाना हो, तो देन यू कैन फॉर्म योर कंपनी, यू कैन लीगलाइज इट, फिर आप अच्छे से कर सकते हो सिस्टमेटिकली। ओके, अच्छा, फंडिंग वाला पार्ट जो है ना, अब जैसे आप ही के आइडिया में मैं इसको फिट करता हूँ। फंडिंग वाला जो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में जब स्केल करोगे ना इसको काम को, तो आपको एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप 50 पर्स बेच के आपका काम नहीं चलेगा, आपको 500 सेल करने हैं, आपको 1000 सेल करने हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस मार्केट में, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होती है, राइट। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास प्रैक्टिकली? क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लोन एक ऑप्शन हो सकता है, बैंक लोन। दूसरा क्या हो सकता है? ग्रांट, जो मैंने अभी ग्रांट बताया, सीड फंडिंग स्टार्टअप इंडिया वाला। हाँ, सीसी लिमिट हो सकती है, ओडी लिमिट हो सकती है, वो तब हो सकती है जब आपका रेगुलरली इनकम फ्लो चल रहा हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन फाइनेंस योर बिजनेस, अलग अलग ऑप्शन। अच्छा, आपके लिए ना एक बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पे, ये नंबर देखो आप, हाउ मच इट इज एंड हाउ मच इज द टोटल? ये स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से निकाला है, ऑलमोस्ट 50% जो स्टार्टअप्स है ना, वो विमेन स्टार्टअप है,
ठीक है, जैसे आपका आइडिया है ई कॉमर्स पे करने का, उनका आइडिया है, तो ये आपको कंफर्ट देने के लिए नंबर में हाईलाइट कर रहा हूँ, यू कैन स्टार्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि विमेन मैन जेंडर बाय कुछ नहीं है अभी में, बल्कि विमेन ज़्यादा बेटर बिजनेस कर सकती है, विमेन की मैनेजमेंट स्किल्स बेटर होती है, और इसको एक्सेप्ट करना कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आपका भी कुछ आइडिया था, आपको स्टार्टअप करना था मेरा प्रोग्राम नहीं? अच्छा, ये आपको पता होगा पता है आपको कैसे स्टार्ट हुआ था जीरोधा? मतलब जीरोधा जब स्टार्ट हुआ था ना, दे वर डूइंग थिंग्स मैन्युअली। मतलब उस टाइम जब डीमैट अकाउंट ओपन होता था, जीरोधा का एक कलेक्शन बॉय आता था, ठीक है, पेपर्स लेके डीमैट के बकायदा मैन्युअली पेपर साइन कराता था, वो मैन्युअली जो साइन करा के पेपर होते थे वो सबमिट करता था, फिर 10 दिन में एप्लीकेशन प्रोसेस होती थी। ओके, मतलब दे हैव स्टार्टेड विद दिस प्रोसेस इनिशियली। अब क्या होता है, इंस्टेंट अकाउंट हो जाता है, ठीक है, क्या इसने फंडिंग ली? देखो पता है ना, और ये एक परफेक्ट केस स्टडी है आप लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि फंडिंग के बगैर स्टार्टअप नहीं लॉन्च हो सकता। ठीक है, वो कैसे? मतलब ये बूटस्ट्रैप में बहुत ही मुश्किल अप्रोच से इन्होंने लॉन्च किया था। आज ये जो वेंचर रन करते हैं कई कंपनी है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब ये इतने कैपेबल बन गए हैं कि इन्होंने इतने सारे मतलब आई थिंक 6-7 स्टार्टअप है जिनमें इन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है, पैसा होगा तभी लगाया होगा। तो हाउ दे हैव अर्नड दिस, कैसे कराया इन्होंने गैप देखा मार्केट में, उन्होंने देखा कि ना ब्रोकरेज बहुत हैवी चार्ज होती है, सेल परचेज में जो ब्रोकरेज है, तो ये डिस्काउंट ब्रोकरेज सबसे पहले ये लेके आया, ठीक है ना, 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से इन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू किया, बहुत ट्रैफिक आया, बहुत सारे क्लाइंट एक्वायर किए। अभी इनके पास आई थिंक 16 मिलियन इनके यूजर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक में इन्होंने जनरेट करे हैं। अभी उसने कामत जो इनके फाउंडर हैं, को फाउंडर, उसने लिंक्डइन पे भी ये डाला हुआ था कि विदाउट रनिंग एनी एड वी हैव एक्वायर्ड 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई थिंक नितिन ने डाला था, एक तो वो पॉडकास्ट करता है, राइट, एक पॉडकास्ट करता है जो दूसरे वाला है, उसने शायद डाला होता है ये नंबर, मतलब आई थिंक उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख उनके यूजर्स हैं जो ऑर्गेनिकली विदाउट रनिंग एड उन्होंने जनरेट किया, और ये जो बिजनेस आई थिंक 3-4 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक और स्टार्टअप है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपने सुना होगा ज़ोहो के बारे में। यस, ठीक है, ज़ोहो भी बूटस्ट्रैप स्टार्टअप ही है, लाइक है, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप भी अच्छा करते हैं, जरूरी नहीं है कि फंडिंग लेके स्टार्टअप अच्छा करते हैं, ठीक है, बट ये दोनों ना टेक बेस्ड स्टार्टअप है। अब हम जो अभी बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, कैपिटल की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो टेक बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च करना, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च करना, सबके डायनामिक्स अलग अलग हैं। जैसे इनको सप्लाई चेन का करना है, तो सप्लाई चेन में क्या करेंगे, ये एग्रीगेटर की तरह ही तो काम करेंगे ना, सब कुछ खुद थोड़ी जनरेट करेंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली सप्लाई चेन में तो कनेक्ट करने का काम होता है कि आपकी जान पहचान नेटवर्किंग कैसी है और आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो राइट टच पॉइंट्स पे, और वो स्मूथली कैसे काम कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, राइट। ओला उबर क्या करते हैं, ओला उबर टैक्सी प्लेटफॉर्म थोड़ी है, सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है भाई, ड्राइवर को कनेक्ट कर दिया उसने राइडर से अपने प्लेटफॉर्म लेके, राइट। मतलब आपको डायनेमिक समझने में जरूरी है, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है स्टार्टअप शुरू करना, बहुत आसान है, बट मतलब आप अगर डेप्थ में जाते हो ना चीजों की, देन यू कैन डू इट बेटर। यू हैव टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, अपनी रिसर्च स्किल्स आपकी बेस्ट होनी चाहिए, और फिर एग्जीक्यूशन तो मस्ट है ही, एग्जीक्यूशन के बगैर तो कुछ होगा ही। अच्छा, जोमेटो का एग्जांपल भी आपको पता है। अच्छा, जोमेटो की शुरुआत कैसे हुई थी, कुछ आइडिया, कहीं पढ़ा हो आपने? मतलब क्या होता है, जैसे आपका कॉलेज है, मान लीजिए इसमें कैंटीन हो, कैंटीन है कोई कॉलेज में अंदर, अब कैंटीन में ना मेन्यू लगा होता है, ठीक है, तो इनका भी कुछ ऐसा सिस्टम था, इनके ऑफिस में कैंटीन थी, उसमें मेन्यू था। अब उसमें लाइन इतनी लंबी लगी होती थी कि वो बंदे को ना पहले ऑर्डर देने के लिए ही पूरी लंबी लाइन में लग के फिर वो मेन्यू पूछता था। इन्होंने क्या किया, वो मेन्यू कार्ड को ना
क्लिक किया और उसको इंटरनेट पे डाल दिया अपने ऑफिस के, ठीक है। और वही नहीं, आसपास के जितने किचन वाले थे, खाने वाले थे, होटल थे छोटे मोटे, सबके मेन्यू को उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया। अब जब डाला ना तो इतना ट्रैफिक आया कि इनका इंटरनेट ही फट गया, मतलब सिस्टम बंद हो गया इनका, इतना ट्रैफिक आया। उससे इनको आइडिया लगा कि इसकी डिमांड होगी, ठीक है। तो MVP ऐसे भी टेस्ट होता है। बच्चों की मीटिंग होता है क्या, मतलब तो अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये जोमेटो वाला आइडिया, जोमेटो 2021 तक लॉस मेकिंग स्टार्टअप था, ठीक है। लगभग 10-12 साल इन्होंने बिना प्रॉफिट के अपने ऑपरेशंस को रन किया, खूब फंडिंग इनकी हुई था। नहीं बेटा, ये प्रॉफिटेबल हो गया था 2021-22 में। नहीं, जोमेटो जो है ना, IPO जब इनका आया ना 2021 में, ठीक है, उससे अगले साल में प्रॉफिटेबल हो गए थे। अभी भी इनका जो रिजल्ट आया है, 4 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट उठा के आया। अच्छा, तो कंपनी लॉस है। मैं कह रहा हूँ जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गया था। अब आज की डेट में क्या, वो मुझे नहीं पता, बट ये प्रॉफिटेबल होने में इसको 14 साल लगते हैं, ठीक है। आज की डेट में फिर से लॉस मेकिंग हो जाएगा, फिर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, जो स्टार्टअप फंडिंग लेते हैं वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग होने में इतने साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अब क्या जोमेटो बेकार स्टार्टअप है, वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबके ना अपने डायनेमिक्स हैं, ठीक है। इसके डायनेमिक्स इनको क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करना था, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा ये कस्टमर एक्वायर करेंगे, इनके डिलीवरी बॉय की पर कस्टमर डिलीवरी कॉस्ट कम होगी, यही है ना। मतलब इसका मार्केट डायनामिक क्या है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर को ये तभी कम कर सकते हैं जब इनके पर हेड एक पर्टिकुलर सिटी में जाए लॉन्च कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिलीवरी बॉय जो इनके हैं वो जितने हैं एंड पर कस्टमर में जो डिलीवर कर रहे हैं, मान लो एक डिलीवरी बॉय को 10,000 रुपए देते हैं मिनिमम, ठीक है। और 100 डिलीवरी बॉय इन्होंने मान लो Tier 2 सिटी में एक नए शहर में लॉन्च किया, तो 100 × 10,000 कितना हुआ, 1 लाख। 10 लाख रुपए हुआ, ठीक है। अब 10 लाख रुपए तो इनका सिर्फ फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो तो मिनिमम पे ही दे रहे हैं, प्लस मान लो पर डिलीवरी का भी इंसेंटिव देते हैं डिलीवरी बॉय, ठीक है। अब मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, अब इसके ना इसमें मैं जानना कि इनका पेमेंट का क्या मॉडल होता है, बट सोचते कैसे है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। 10 लाख की फिक्स कॉस्ट है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंसेंटिव की मान लो 5% है इनकी, ठीक है। 5% ऑफ जो सक्सेसफुल डिलीवर करेगा उन्होंने, तो जितना जोमेटो अर्न करेगा उसका 5%, 10%, 15% ऐसे करके एवरेज मान लेना 10% जो जोमेटो को मिलेगा उसका उनको जाएगा डिलीवरी पार्टनर को, ठीक है। तो जितने ज्यादा उनके ऑर्डर डिलीवर होंगे, तो ब्रेक इवन करने के लिए, मतलब ये 10 लाख फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए दे नीड टू डिलीवर एटलीस्ट इतना कि इनका 10 लाख का जो ये कॉस्ट है वो इनकी उस डिलीवरी फी से कवर हो जाए। मान लो पर ऑर्डर के 20 रुपए अगर अर्न करते हैं, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ, 50,000 हुआ ना। तो 50,000 ऑर्डर तो मिनिमम डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 50,000 ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 50,000 कस्टमर भी एक्वायर करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है कि जब ये अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन या ये सब चलाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि कितनी मार्केट को इन्हें रीच करना है, उसमें से कितने इनका परसेंटेज कन्वर्जन है। तो एड कॉस्ट भी तो लगेगी ना, राइट है ना। मतलब क्या है, आपको किसी भी सिटी में लॉन्च करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिटी का कैसे डायनामिक वर्क कर रहा है। इन्होंने कई सिटी में स्टार्ट करके बंद भी किया, राइट किया ना, आपको पता होगा ये। तो हमारे शहर में भी, मैं वैसे सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम टाउन है, वहाँ पर भी इन्होंने स्टार्ट किया था, 2 बार ये बंद भी कर चुके हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट किया था। मतलब ये बीच बीच में बंद भी करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ लॉन्च कर दिया वहाँ चल ही रहा है ना। तो ऐसा बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल ये इस चीज की दोनों जो एग्जाम्पल थे ना, इसको आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि ज़ीरोधा एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने बूटस्ट्रैप वे में प्रॉफिटेबल बिजनेस लॉन्च किया और इस लेवल पे चला गया कि वो 600 और स्टार्टअप में भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जोमेटो ने लॉस मेकिंग स्टार्टअप लॉन्च किया, खूब लॉस उन्होंने अर्न किया, बट वैल्यूएशन के मामले में अगर मैं ज़ीरोधा और जोमेटो को कंपेयर करूंगा तो किसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, जोमेटो की, ठीक है। क्यों है जोमेटो की वैल्यूएशन ज्यादा,
फूड का मार्केट बड़ा है या इन्वेस्टमेंट का मार्केट बड़ा है इंडिया में? फूड का बड़ा है ना भाई, फूडी तो है ही ना हम सारे, यस क्या जिसके तो चाहिए ना हमें। तो जोमेटो और स्विगी का कुछ मैसेज आता है रोज फोन पे, आपको कुछ ना कुछ हो ही जाता होगा उस दिन, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो इनको क्या है, इन्होंने कस्टमर इतना एक्वायर कर लिया कि रिपीटेबल ऑर्डर भी अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्ट आप तभी करोगे जब आपके पास एडिशनल सरप्लस पड़ा होगा, पैसा पड़ा होगा। तो जीरोधा है या अपस्टॉक है, जो भी प्लेटफॉर्म, वो कैसे अर्न करेंगे? ब्रोकरेज से। तो वो सट्टा बाजारी से अर्न करते हैं बेसिकली। ठीक है, लोग ट्रेडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना उनको प्रॉफिट। करेक्ट है ना, उतनी उनकी अर्निंग होगी। आप को देखेंगे, अगर आप निखिल कामत या नितिन कामत को फॉलो करते हैं ना, वो खुद बोलते हैं 93% जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, वो लॉस मेकिंग है, उनको लॉस होता है। सिर्फ 7% लोग हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, राइट। तो आप खुद देखो, वो इस चीज़ को बता भी रहे हैं, तब भी ट्रेडर कम तो नहीं हो रहे हैं, राइट। ट्रेडिंग तो तभी होती है ना, बट क्या ट्रेडिंग इतनी होती है जितना फूड का कंजम्पशन होता है डेली? अब अगर ये 2% भी चार्ज, कितना चार्ज करता है जोमेटो एक ऑर्डर पे? ट्रांजेक्शन, हाँ, प्लेटफॉर्म की कितनी है अप्रोक्सीमेटली? 30 रुपये, 30 से 50। ठीक है, और अगर जीरोधा की बात करूँ, वो कितना चार्ज करता है एक ट्रेड पे? वो इंट्राडे पे 20 चार्ज होता है, 20-25। हाँ जी, इंट्राडे पे 20-25 और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे तो कुछ भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इंट्राडे पे कितनी करता है? 20-25 रुपये करता है ना। तो लगभग अगर फीस देखो तो एक जैसी है दोनों की, 20-25 रुपये, इसकी 30 रुपये है। ठीक है, बट फूड के ऑर्डर ज़्यादा होते होंगे ना ऑल ओवर इंडिया में भी चार्जेस है। फूड में तो उसका अलग होता है, नॉर्मल रेस्टोरेंट के अलग चार्जेस हैं और जोमेटो के अलग चार्जेस, वो तो है। तो मतलब जोमेटो अर्न तो कर रहा है अच्छा खासा, ठीक है, बट जोमेटो का कॉस्ट कहाँ जा रहा होगा आपके हिसाब से? मेजर एक्सपेंस क्या है? मार्केटिंग, डिलीवरी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस। हाँ एक्सपेंसिव। नहीं, वो तो डिलीवरी में तो चार्जेस भी तो ले रहा है ना। बट एक लार्ज अमाउंट जो उसका रेवेन्यू होता है, बट वो उसी में जाता है। करेक्ट। तो अब जब आप भी, जैसे मान लीजिए अभी इनका जो आइडिया था, पर्स का आइडिया था, मैंने स्टार्टिंग में इनको क्या बोला, कैसे सेल करना है? सोशल सेलिंग बोली थी ना मैंने। ठीक है, क्यों बोली थी मैंने सोशल सेलिंग? क्योंकि सोशल मीडिया में ऑलरेडी यूजर्स हैं, जेन ज़ी है, करेक्ट है ना, तो ऑर्गेनिकली भी तो ट्रैफिक आ सकता है ना। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, उस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट क्या है, आप जो वहां से प्रोडक्ट सेल करेंगे तो क्या आप उस कॉस्ट को ब्रेक इवन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कभी भी प्रोडक्ट लॉस में नहीं बेचना चाहिए। अगर आपकी पर्स की जो कॉस्ट है वो 500 है, तो मिनिमम प्राइसिंग आपको 1000 या 1200 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो फायदा नहीं है। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट तो बिल्कुल भी मत बेचो। आप सोचो 100 रुपये ऐड कर लूंगी, उसमें 600 का बेच दूंगी, तो वो नुकसान आपको होगा, करेक्ट, क्योंकि डिलीवरी का चार्ज भी लगेगा। हो सकता है आपको पोस्ट को बूस्ट भी करना पड़े, उसमें भी आपका एक्सपेंस होगा। हाँ, 10x तो यार डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। 7x से ऊपर जितनी कॉस्ट है। नहीं, ऐसा 7x से ऊपर बेचो वो ठीक है आपकी बात, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। देखो, वो ना डिपेंड करता है प्रोडक्ट और स्केल के ऊपर। अगर आपको आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट बड़ी कैप्चर करना चाहता है, तो आप 10x पे नहीं बेच सकते। हाँ, मतलब वो आपके नीश पे डिपेंड करता है। 6-7x आप करते हो प्रीमियम प्रोडक्ट में, नॉर्मल प्रोडक्ट में नहीं कर सकते ना, वो डिपेंड करता है। वही मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कैसी है, कस्टमर कैसा है, उसके हिसाब से यू विल बी डिसाइडिंग द प्राइस। जैसे इनकी मार्केट थी प्रीमियम प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्राइसिंग, तो वो मिड सेगमेंट हो गया, तो उसमें 7x नहीं कर सकते, राइट। मतलब प्राइसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं उसके लिए। सर, जैसे मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट का प्राइस किया है, तो व्हाट शुड बी द लाइक आइडियल मार्जिन यू शुड कीप कि कॉस्ट भी प्रोडक्ट क्या है? जैसे मान लो कि कोई होम डेकोर है, जैसे मान लो XYZ होम डेकोर है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 3000 व्हेन आई बाय इट, और मैं उसको सेल कितने में करूँ, लाइक व्हाट शुड बी द मार्जिन? वो होम डेकोर का प्रोडक्ट यूज कहाँ पे होता है और उसके कस्टमर कौन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास में डेफिनेटली वो होम डेकोर के आइटम नहीं लगाएगा, बिलो मिडिल क्लास वाला नहीं लगाएगा। तो वो किस तरह के घर में लगेगा, क्या उसका कस्टमर होगा, उसके हिसाब से डिपेंड। सर, आई एम मेनली थिंकिंग अबाउट द प्रीमियम पर्सन, लाइक
in the middle class family. Like the person who is currently buying a new house and उनको home decor हाँ चाहिए. ये आपने सही बोला. अब आपकी टारगेटिंग ठीक है. अगर न्यू हाउस वाले को कर रहे हो हाँ. और वो उसके अंदर डी मिनिमस चीज है, होम फर्निशिंग में उसको लगाते ही लगता है रेट में बंदा. ठीक है, फिर आप उसको 5-7 हज़ार 10,000 भी प्राइसिंग कर सकते हो. ठीक है, बट एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है, उसका राइट ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से डिजाइन होगा. ऐसे ऑन द फ्लाई ना तो मैं आपको बता पाऊंगा ना आपको डिजाइन करना चाहिए. मतलब कस्टमर को समझना जरूरी है पहले कि कस्टमर की पॉकेट कितनी डीप है. क्या वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला कस्टमर है या प्रीमियम फ्लैट वाला कस्टमर है ना, या वो बिल्डर फ्लोर वाला कस्टमर है. वो आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर कौन सा है जिसको मुझे टारगेट करना है, उसके हिसाब से आप टारगेट करें. ठीक है ना, मतलब आइडियली यही करना चाहिए. मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस को यहाँ हम डिसाइड करते हैं ना. नहीं वो जैसे उन्होंने बोला कि मैं 3,000 का खरीद लो, तो कॉस्ट होगी ना उनकी. 3,000 का खरीद के 3,000 का नहीं बेचेंगे, बट वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि कस्टमर की डिमांड नहीं है. सबसे बेस्ट चीज ये होती है अगर वो प्रोडक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होता है ना, जैसे Amazon पे किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है. अगर Amazon या किसी प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट लिस्टेड है जो होम डेकोर का प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, होम डेकोर वाले भाई आपसे बात करें आपसे अगर होम डेकोर का प्रोडक्ट अगर कहीं पर लिस्टेड है, आप ये भी देखो कि उसका वहाँ प्लेटफॉर्म पे क्या चार्ज है सेम प्रोडक्ट का जो आप सेल करना चाहते हैं. Sir, what I'm trying to do, I'm like a dropshipper. Like अभी currently मैं vendors वगैरह खोज रहा हूँ. So what I'm doing, I'm talking to 3-4 vendors, उनसे different home decor के चीजें देख रहा हूँ. So there's a person, she lives in her store is in Faridabad. So day after yesterday, I'm going to go there and visit her store. So she mainly sells wall decor stuff and home furnishings like wall lights, hanging lights. So what I am trying to do, I've talked to her yesterday. So what she says ki the buyers, like the dropshippers who is like currently buying stuff from them. What they do is like they. She is a supplier ना? Yeah. वो supplier है. हाँ. ठीक है. So क्या है कि उनका उनसे जो चीज़ें खरीद रहे हैं और वो अपने जो दूसरे लोग हैं अपने वेबसाइट से बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो 3-4 हज़ार की चीज़ें खरीद के दे आर सेलिंग इट फॉर 12,000 13,000 एंड उनके मार्जिन अच्छे है एंड इट्स वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज कस्टमर्स भी काफ़ी आ रहे हैं उनके पास. ठीक है. अब ये जो आपने बताया ना, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है. वो कैसे है मैं बताता हूँ. 12,000 का वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बेच कहाँ पे रहे हैं, कौन से चैनल से बेच रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट Amazon, Flipkart या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 4,000 का बिक रहा है, अगर बिक रहा है, आपको पहले ये भी रिसर्च करना पड़ेगा. सर मैंने वो एक्चुअली किया था. सो वो जो प्रोडक्ट्स वो एक्चुअली बेच रही है, सो यू कैन से दैट अराउंड 75% उनके जो प्रोडक्ट्स वो Amazon में नहीं है. मैंने लाइक फॉलो रिसर्च किया है Amazon, Flipkart दोनों में. इनफैक्ट मैं नाइका में भी गया था कि क्या पता उधर हो, बट नहीं था वहाँ पे. अच्छा नहीं मिला. नहीं मिला. ठीक है. वो बिग किसको रहा है, बायर को ना उसका. मैंने ये चीज़ एग्जैक्टली पूछी नहीं है, बट ये नहीं वो आपको थोड़ा वो देखना हाँ, पड़ेगा कि बायर कौन है. हाँ. अगर बायर की कैपेबिलिटी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस बायर को आप कैसे रीच कर सकते हो. क्योंकि मेन चीज यही है, सप्लाई आपने क्रैक कर ली, मतलब वेंडर क्रैक कर लिया, बट बायर क्रैक करना भी जरूरी है. अगर बायर क्रैक करोगे तभी तो आप बेच पाओगे ना, वरना आप कितने भी सप्लायर क्रैक कर लो कोई फायदा नहीं है. बायर नहीं मिलेगा. हाँ नहीं वो डेटा वो कह रहे हैं कि ऐसे अवेलेबल नहीं है, ऐसे तो पब्लिकली तो होगा. हाँ क्योंकि वो ऐसी लाइक शी इज काइंड ऑफ अ लोकल वेंडर, तो उन पे इतना हाई फाई नहीं. जो लोग 12,000 का बेच रहे हैं ना, वो कौन लोग हैं और कौन से सिटी में बेच रहे हैं, वो तो फिर इनसे पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ करेक्ट है ना. मतलब वो थोड़ा आइडिया तो लगे ना, फिर उस तरह के लोगों को हम टारगेट करें. या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर वो पता लग गया कि कौन सी सिटी में सेल हो रहा है, वही प्रोडक्ट आप उसको बोलो कि भाई मैं तेरा 2,500 में चला दूंगा, अगर बायर पता लग जाए तो. ठीक है ना. और इससे आप बल्क बाइंग करके वहाँ पर भी 500 पर प्रोडक्ट कमा सकते हो, वैसा भी कर सकते हो. वो भी एक मॉडल हो सकता है. ठीक है. उससे आपको कल को अगर मान लो वो बोलेगा कि आप डायरेक्ट डिलीवर भी कर दो, आपको ये पता लग जाएगा कौन से एड्रेस पे डिलीवर हो गया. ठीक है. थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह के लोग बाय कर रहे हैं, तो दोनों साइड पे बेनिफिट हो सकता है. आप बीच के सप्लायर भी बन सकते हो और आप बायर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. मतलब थोड़ा सा जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं. ओके. अच्छा ये जो नंबर है ना, अभी बोला जाता है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो ग्लोबली सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाएगा 2030 में.
ठीक है, क्या इसका कोई बेनिफिट होगा अगर बन भी जाएगा तो? आपको क्या लगता है? सर डिपेंड करता है कि कैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल रहा है। Correct. अगर एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन बार बार निकला जा रहा है फिर तो वो ओवर बर्डन हो रहा है ना उससे Correct. पर्टिकुलर सेक्टर में। मतलब उस- ब्लू ओशन आइडियाज कितने हैं लोगों के, हाँ। क्रिएटिव आइडियाज कितने हैं, उनसे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी बड़ी सॉल्व हो रही है ग्राउंड पे, वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि स्टार्टअप कितने रजिस्टर हुए हैं। करेक्ट? बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को प्रमोट करेगी अगर ग्लोबली, तभी तो इन्वेस्टर्स आएंगे ना। तो ये नंबर जो होते हैं ना, बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी यहाँ मेंशन्ड है, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सेज। वो बोलेगी स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में सबसे बड़ा होगा, तो जो दूसरे कंट्रीज के इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। बट ऑन ग्राउंड अगर हमें अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है तो वो इस नंबर को देख के नहीं लॉन्च करना है कभी भी, वो हमें रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उसके बेसिस पे लॉन्च करना है। ठीक है? आप सबको ऐसा लग रहा है नींद आ गई है, बोर हो गया। I think I am good with the session part, but आप अपनी क्वेरीज जरूर पूछ सकते हैं और आप अपना मतलब मेरा मेल आईडी का नंबर आप मैम से लेके यू कैन ड्रॉप मी योर क्वेरीज इज दिस। अगर आपका कोई डाउट हो स्टार्टअप शुरू करने से रिलेटेड, ठीक है, शुरू कर चुके हैं, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, कोई चैलेंजेस हो तो आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। Sir, I would now like to invite Rita ma'am to extend the vote of thanks. It gives me immense pleasure today to thank Mayank sir on behalf of the management, the faculty and the students of the university. It is an honor to have you here today, sir. And the best aspect of the session was the insights that you came out with. So it is not the money that you need to, create a startup. It is the good idea that can capture, that can solve the problem of the society or that can cater to the need of the society. So that is what you have to identify. If there is an untapped need, you have to catch that, and then you can see how you can solve the problem. That is what sir beautifully explained today. Thank you so much, And you sir. have summarized it better than me. Thank you. Thank you.